अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ग्रेट। क्या हाल है भाई, सबका ठीक है? So there is a great news for everyone. अगली क्लास से हम कॉन्फ्रेंस रूम में मिला करेंगे। फजीला इज हियर। ठीक है? हेलो guys, I can't hear you. Hello, I can't hear you people. Can you hear us? हाँ हाँ हाँ, वो आवाज आई है, ज़ैना की आवाज आई है, बट इट्स क्वाइट लो। अच्छा, तो कितने बाकी सारे हमारे 5 बंदे पूरे करें फटाफट। Where is Fazila and कौन था? 80. किधर है भाई? He's, I think, unwell. Chalo. And there was the CS kid. What was her name? Hayat. She's also missing. Perhaps one of the most important lectures, and we have 2 kids who are missing. Chalo, theek hai. So let's start. We were doing dynamical analysis of systems last time. So any memories of how the dynamical analysis worked? Anji. How do we perform dynamical or temporal analysis of biological networks? Any hints? So let me help you. So what we do is we define time steps, right? So we have time steps 0, 1, 2, 3, 4, and at every time step we compute the state of the network in light of the previous time steps that we have computed, right? So जो आपके network की state at t+1 है, it will be computed in the light of the network state at t is equal to 0. Similarly, you will compute the network state at t+2 by looking at the network state at t+1. Now the only thing that remains is how do we compute the network state? So the network state, as we discussed earlier, can be, a network can take any one of the network states that are possible as a result of the Boolean combinations of different nodes. For instance, if you have a network with 4 nodes, how many possible network states can exist? 16. 2 raised to the power 4. 16. 2 raised to power 4. So in 2 raised to power 4 states में से नेटवर्क किसी भी एक स्टेट में होगा। अब सवाल ये है कि कौन सी स्टेट, ठीक है ना, नेटवर्क स्टेट तो हमने कंप्यूट कर ली, लेकिन कौन से वाले में होगा? सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी हेल्प? एनीवन वांट्स टू ऐड?
हाँ जी बेटे, anyone wants to add? So topology of the network देखिए हम उसको update कर सकते हैं and then eventually we'll reach a point जहाँ पे steady states आने लगेंगी. बिल्कुल ठीक है. So हम then, as you indicated, we will take one network state out of the 2 raised to power n possibilities and input it to the network and see the output. ठीक है? Network topology is going to determine the output. All right? Is that clear? Is that perfectly clear, Hassan? Yes, sir. Yeah. So the next question then I would want you to answer is, how do we utilize the topology of the network to compute the network state? How do we do that? सर हम टी पे जो हमारे पास गिवन स्टेट होती है हम उससे t+1 एस्टिमेट करते हैं कि हम जो है लॉजिकल बूलियन मॉडलिंग यूज़ करते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास इनहिबिशन या एक्टिवेशन कोई चीज़ कर रही है तो नेक्स्ट स्टेट वो t+1 पे क्या होगी. Rita, Fazila, guys, put on your cameras. अच्छा देखो, Hassan, so what we have to do is, we have to calculate the network state by computing Deterministic. every node within the network, and you collate the states of the network such that it becomes the network state. ठीक है? So network state compute करने के लिए आपको node की state compute करनी पड़ेगी, और node की state compute करने के लिए जरूरी है कि आप उस node की upstream regulation को देखें. ठीक है? नोड की अपस्ट्रीम रेगुलेशन में इनहिबिशन भी हो सकती है, एक्टिवेशन भी हो सकती है, और लास्ट टाइम देयरफॉर हमने किया था डिटरमिनिस्टिक एनालिसिस ऑफ नेटवर्क्स. तो याद है? Yes, sir. I will review all of it with you today, so you don't worry. ठीक है? So let me share the slides. So देखो, डिटरमिनिस्टिक मॉडलिंग हमने शुरू की थी और हमने ये देखा था कि एक नोड को, आपने अभी एग्री किया मेरे साथ कि आपको अगर नेटवर्क स्टेट कंप्यूट करनी है तो उसके लिए आपको हर नोड की स्टेट कंप्यूट करनी पड़ेगी, और फिर उन सब को आप इकट्ठा जब कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? नेटवर्क स्टेट. राइट? सो वी हैव टू फोकस ऑन ईच नोड. सो एक नोड को कंप्यूट करने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. ठीक है? हमने क्या किया कि उसके अपस्ट्रीम जितने नोड्स हैं उनको कंसिडर कर लिया. ठीक है? इस नोड पे हम फोकस कर रहे हैं. सो नोड का नाम है x. ठीक है? सो नोड x कंप्यूट करने के लिए हमने देखा कि देयर आर 3 अपस्ट्रीम रेगुलेटर्स, node 1, 2 and n, right? So for node 1, the weight is, the interaction weight is w1x. Yeah, 1 for this node and x for this node, target node, right? So this is the source node and this is the target node. Target node. So आपने इस तरह हर एक का इंटरैक्शन वेट और उस नेटवर्क की जो, उस नोड की जो स्टेट थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसा ही हुआ. Yes. Yes, sir. जब आपने तीनों का प्रोडक्ट ले लिया तो देन यू एडेड इट ऑल अप. सी, दिस इज व्हाट वी, ठीक है? एंड सिंस यू एडेड ऑल ऑफ देम अप, you computed the net inward flux to node x. X inward flux क्या होगा? A net inward flux can be a negative number, it can be a positive number. It all depends on what kind of activation or inhibition we have in the network topology. Is that clear? Yes, sir. Very nice. तो ये हम पिछली दफा कर रहे थे, तो हमने, अच्छा फिर यहाँ पे आपने देखा कि हाउ डू वी फॉर्मुलेट अ पीसवाइज फंक्शन. पीसवाइज किसको कहते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पीसवाइज फंक्शन? To convert this into Boolean modeling thing. अच्छा ये देखो, है ना,
देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये पीसवाइज फंक्शन है कि नहीं? I don't know what is the piecewise function. ऑलराइट, सो पीसवाइज फंक्शंस वो होते हैं. अच्छा, सो व्हाट इज द रेंज एंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन? Domains are the values of y and range में x होता है. ठीक है. So okay, so you have the values of x and the values of y. Okay, Zainab, are you sure? I think it was the other way, no? No sir, I think this is All right, so if your range is continuous, then it's not a piecewise function, it's a continuous function. ठीक है, लेकिन अगर x के ऊपर x की एक certain range में लेट्स से 0 से 5 तक कुछ बिहेवियर है सिस्टम का, 6 से 9 तक कुछ और सिस्टम का बिहेवियर है, 10 से 15 तक कुछ और बिहेवियर है. सो इन दैट केस we'll have 3 pieces of this, right? So we call it piecewise. अब आप यहाँ पे देखें कि the target node has its value determined by 3 different conditions, right? So we have broken down the range of the values to represent a specific value of the target node. कि अगर 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव, 0 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव, और 0 होगा तो unchanged. So that is why we call it a piecewise function. Is that clear? yes sir. ठीक है. अच्छा, piecewise function यहाँ पे हमने जो बनाया है उसमें देखो हमने 3 डिफरेंट चीजें दी हैं कि अगर आपके पास, अच्छा सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं. Zila, what is the meaning of this guy? Zila, Yes, sir. what is the meaning of Wijxj? Sir, this is what we have written from our previous network. जी? Fazila, hello, can you? Sir, can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay. So I'm saying we have written this equation from previous slide. I exactly don't remember what does that mean. Okay, so Wij is the weight of ith node with the jth node. ठीक है, so ith node कौन सा आपका? Target. ठीक है, so इसका सोर्स नोड क्या होगा फिर? J. J. ठीक है, so call it weight of source target x of target. ठीक है, Source. सॉरी सोर्स. ठीक है, और इनको आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया एट टी, आपने इसको ओवर जे यानी कि ओवर ऑल सोर्सेस आपने इनको सम कर लेना है. तो ज़ीला, इज दैट क्लियर नाउ? हेलो, Yes, sir. श्री BI क्या है? क्या चीज? श्री BI जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है? VI बताता हूँ पहले. WST XS और सम ओवर S को एग्री कर लें. ठीक है हसन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं उधर आ रहा हूँ. तो सबको क्लियर या कोई टू हैंड है यहाँ? Clear sir. क्लियर, ठीक है. ओके, सो अब देखो बच्चों, हसन ने हमसे पूछा है कि ये जो BI है ये क्या चीज है. देखो
I का मतलब ये किस चीज की V है वैल्यू? Target. टारगेट की, बिल्कुल सही, क्योंकि टारगेट यहाँ पे है I। तो टारगेट का B का मतलब है बेसल। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, बेसल एक्सप्रेशन क्या होता है? Anybody can imagine what kind of a term is that? Basal expression, what does it mean in English? Basal, Minimum. minimum, या in absence of any stimulus, है ना, कि भाई इतना तो हो गई, ठीक है ना। So basal value is essentially the inward node in absence of regulation. ये लिखने, basal value is the input flux or inward flux of a node in absence of any upstream regulation. Is that right, everybody? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि जब हमने इनवर्ड फ्लक्स निकालना है तो उसमें कौन सी चीज रह जाएगी जो बेसिक वैल्यू हमें फिर प्रोवाइड करेगी? So to answer that question, you can imagine that there are 30,000 nodes or 25,000 nodes, genes in our DNA. So are you going to model all of them, or are you going to take a subset of, this these 30,000 genes? You are going to take a subset, right? So if you are going to take a subset, it means you are going to miss out on certain nodes that should have been included but are not included. So in order to accumulate all the effect of all such nodes that are missing in the network, we use the basal value. ठीक हो गया? अगर आपका नेटवर्क जो है वो 50 नोड्स का है तो आपने 29,950 जीन्स तो आपके मिस हो गए, है ना? So you can incorporate the effect of those missing genes through basal values. Now, you tell me for a cookie point, अगर basal value जो है बहुत बड़ी है as compared to the value of this term, what does it mean? इसका मतलब है कि जो मिसिंग जीन्स हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। Very good, Hassan, शाबाश। So it means कि आपका जो नेटवर्क है that is not sufficient Already. scale. That is, it is missing on important regulators that you should have, है ना? इसका मतलब है कि हमें अपना नेटवर्क बड़ा करना चाहिए। नेटवर्क बड़ा करना चाहिए। एक्सीलेंट हसन। सो अब देखो बच्चों, मेरी बात सुनो, जब आप बेसल वैल्यू और नेटवर्क की जो रेगुलेशन उनको इकट्ठा करके ऐड कर लेंगे तो क्या आपको टोटल एक नोड की स्टेट जो है वो पता चल जाएगी? यस सर। Yes, sir. But वो boolean में नहीं होगी बस। बट वो बूलियन में नहीं होगी। अब मैं आपको एक यहाँ पे ऐसी चीज इंडिकेट करता हूँ जो अभी तक हमने इग्नोर की हुई है। वो चीज है दिस गाय, हैं? What is t and t plus 1? Time T step. current time and t plus 1 is next time state. वेरी गुड। अच्छा हसन, ये बता सकते हो कि b के साथ हमने t क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो है ना हमारे मिसिंग जीन्स हैं और इनका एक हम कंबाइन इफेक्ट ला रहे हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटेशन It डायरेक्टली। is time dependent नहीं होगा. It's like it exists like forever. It won't be affected by time steps. Yes, I think that is the can. It will not be affected by the time. It is a topological property of the network. It is not a temporal property of the network. Okay, so you can write emails to Manur and both of you will get a cookie point each. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर हम
यहाँ पे ये टाइम टी लिख रहे हैं, तो इससे हमारे जो नेटवर्क है उस पर क्या इफेक्ट होगा फजीला? कि हमने प्रीवियस टाइम स्टेप पे जो वैल्यूज थी उसको देख के अगले टाइम स्टेप को कंप्यूट कर लिया। फजीला ऐसे ही हुआ है ना? जी सर। ठीक है। सो आपने अब पिछले टाइम स्टेप को देख के अगले टाइम स्टेप पे जो वैल्यू कंप्यूट की है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू update your network nodes. So once you do it for all the nodes in the network, you can just put them together, right? And you have a network state with you. Yeah, 0, 1, 1, 0, whatever. अच्छा, अब आखिरी चीज इस इक्वेशन के बारे में जो कि वो भी बड़ी अहम है कि देखो बच्चों, अगर t के ऊपर जो आपकी वैल्यूज हैं, t के ऊपर जो आपकी वैल्यूज हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रही हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रही तो t+1 पे आपको क्या होना चाहिए? अगर अभी आपके पास One. पॉजिटिव आ रहा है तो t+1 पे अगले टाइम पे आपका क्या होना चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, हम यहाँ पे यही तो हमने लिखा हुआ है। अगर जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव है, हमारा इवेंचुअली ये जो नोड है ये क्या होगा? 0 Negative. Oh yeah. 0 Zero. 0 बिल्कुल ठीक, 0 हो जाएगा। ये देखो यही लिखा हुआ है। और अगर आपके पास जो इनवर्ड आउटवर्ड फ्लक्स है उसमें फर्क ही कोई नहीं है, तो इट विल रिमेन द सेम। इट विल रिमेन द सेम। तो देखो x i t+1 पे वही होगा जो x i t ऊपर। ये तीन बातें मजीद क्लियर होगी। यस बताओ कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन में जो आपको अभी भी है? आई एम गोइंग टू आंसर दैट बिफोर मूविंग ऑन। सर, ये बेसल वैल्यू जो है ये हमें गिवन होगी? बेसल वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। आपको हम बताएंगे कि आपके नेटवर्क की बेसल वैल्यू जो है वो कितनी है ताकि आप कंप्यूट कर सकें। अगर बेसल वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपका नेटवर्क जो है वो व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक, हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चंस? फजीला, रिदा? नो वन? सर इससे मुझे टेस्ट वाला क्वेश्चन याद आया, बट कैन लाइक आई आस्क दैट क्वेश्चन राइट नाउ और लेटर? श्योर श्योर, नो, सेम क्वेश्चन। इट माइट हेल्प एवरीवन। So there was this question in the test, and it was that we have to use deterministic modeling for computing the basin size ratio, and 4 nodes were given. So that means कि हमने उन 4 में से we just like that means 16 states only. So but we didn't we were not supposed to use all the states. We just have to use only one state in that case. स्टेडी It was स्टेट। it was not clear. It was like देखो, you what have should to, be the हाँ, you have to use any one of the network states. You would use that as values at t and compute the values at t+1. You would do it for, you know, all the different network states that were available, be it 4 or 16, whatever. ठीक है। और आपने, it was a 2-node network, 4 node network, sir. so you had 16 different network states that were possible, right? So Yes, आप sir. नेटवर्क स्टेट को पकड़ के उसका t+1 पे निकालना। हर नेटवर्क का पकड़ के, दैट हर- मीन्स कि एक ही स्टेट के अंदर हमारे पास 4 नोड्स हैं। 16 16 तो हमारे पास एग्जॉस्टिव स्पेसेस है ना, पूरी स्टेट स्पेस, लेकिन हर स्टेट स्पेस में इट वुड बी लाइक 0 0 0 0। तो हमें ये वाला जो फॉर्मूला है दैट्स एक्चुअली फॉर अपडेटिंग द वैल्यू फॉर ओनली वन नोड। हाँ बेटे, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना कि आपने ये देखो, ये जो स्लाइड थी ना हमारी, ये भूल गए। देखो, ये एक नोड को कंप्यूट करके उसके बाद आपने क्या किया था, ये देखो आपकी टी के ऊपर नेटवर्क स्टेट थी 1 0
या 1011 जी, t+1 पे क्या आ गई? वो हम कंप्यूट करेंगे, हाँ बेटे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक नोड के लिए एक क्वेश्चन को चेंज। ठीक है, बाकी आप अस्यूम कर लेंगे 1013। मैंने अभी एग्जांपल, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती तो फिर मैंने कोई जी, करने के लिए सिर्फ एक बताया हुआ। आप यही काम बाकी चारों के लिए भी करेंगे, ठीक है? ये देखो, ओ अच्छा अच्छा, जी 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 सर, तब ठीक है। फिर हम हर स्टेट की हर नोट को कंप्यूट करेंगे, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन था। नहीं नहीं रजा, 1 मिनट में हो जाएगा। सर 1 मिनट में तो नहीं होता। तो हमें फॉर्मूला से कंप्यूट करना थे ना ये, है हमें इस फॉर्मूला से वेट्स और बेसल वैल्यूज भी गिवन थी और वेट्स भी, इंटरैक्टिव वेट्स भी गिवन थे, और प्रीवियस नोट स्टेट लेके हमें फॉर्मूला से ये कंप्यूट करनी थी ना। बेटे, देखो कितना आसान है ये। देखो, इसको पकड़ के मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको पकड़ के मल्टीप्लाई करना है इससे, और इन तीनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, आपके पास नोड नेटवर्क की स्टेट आ गई, यहाँ लिख लें, इस तरह इसकी लिख लें, इस तरह इसकी लिख लें, इस तरह इसकी। ये और चार फिर को सर जो है ठीक है ये, सर ये हमारे पास एक स्टेट के लिए हो गई ना, सो वी हैव 16, तो हमें 16 टाइम्स यही करना था। एग्जैक्टली और इट वुड हैव इमर्ज्ड टू यू कि उसमें से बहुत सारे रिपीट हो रहे थे जो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? यस Yes, sir. यस सर, हाँ, तो आई थिंक प्रॉब्ली यू विल नीड टू लुक इनटू द क्विज अगेन। चलो खैर, नॉट टू वरी, क्योंकि आज आपके लिए मेरे पास जो है ना एक सबके लिए कुकी पॉइंट है, और दैट विल बी कॉम्पनसेटिंग यू फॉर द क्विज अगर आपका गलत हो गया या मुकम्मल नहीं हुआ, आइदर वे। तो लेकिन वो मैं क्लास के आखिर में बताऊंगा, ठीक है? सर, तो एक और भी एक बात करनी थी सर, आप इसका कोई एग्जांपल, मतलब सॉल्व एग्जांपल हमें कोई लिंक दे सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व एग्जाम्पल ही आज मिलेगा, और उसी पे आपको कुकी पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है? चलो, सो दो मजे हो जाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल भी मिल जाएगा और कुकी पॉइंट भी मिल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सो इफ दिस इज नॉट क्लियर, वी आर हैप्पीली मूविंग फॉरवर्ड टू डिटरमिनिस्टिक मॉडलिंग। बेटे, ये नोड कंप्यूट करने का जो तरीका है ना, ये आपने हर नोड के लिए करना है, और आपको एक नई नेटवर्क स्टेट मिल जाएगी। इस चीज को कहते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल। आप जब भी नेटवर्क को एनालाइज करेंगे, जब भी ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपको नेटवर्क की वही स्टेट मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, इसलिए डिटरमिन्ड है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल। ओके, ये आपको नेटवर्क को एक 0 में या 1 के अंदर आपको मैप कर देगा। देखो ना, यहाँ से आउटपुट जो है आपके पास वो सिर्फ 0 और 1 ही आएगी। जब आपकी नोड है यहाँ पे, उसकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 ही रहेगी, तो जो भी वैल्यू है वही मेंटेन करेगा, वो भी 0 और 1 में से ही होगी। ठीक है, सो दिस कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक मॉडल। तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब मैं था जहाँ पे हम पिछले दफा रुके थे कि सिमुलेटिंग द मॉडल। सो इनिशियलाइज ईच नोड विद एन इनिशियल स्टेट एंड बेसल वैल्यू। हसन, तुम यही पूछ रहे थे ना? सो बेसल वैल्यू आप देंगे, आप इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग एन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट कैन बी 1 of 2 raised to power n। ठीक है, 1 of 2 raised to power n possibilities can be selected as the initial state, and you run it again for the second state, you run it again for the third state, such that you do it for all possible networks. Okay. Node is computed for its state at the next time step. This is exactly what we were just doing. And you store state of each. Okay? Acha, now an example. डिटर्मिनिस्टिक एक एग्जांपल है कि बेसन साइज रेशियो कैसे कंप्यूट करना है। सो ये भी पिछले दफा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो यू हैव स्टेडी स्टेट्स एट t0। ठीक है, सो आपने क्या किया, उसको t+n के ऊपर कन्वर्ज कर लिया। ठीक, फिर आपने जब आखिरी स्टेडी स्टेट सारी देखी t+n के ऊपर, तो आपको इस तरह का एक सेट नजर आया, है ना? यस सर, ठीक है ना? लेट्स से कि 00000 से ये आता था, 0001 से ये आता था, 0010 से ये आता था, 0011 से ये आता था, एंड सो ऑन। ठीक है, 11111 से ये आता। ठीक है, सो जब आपके पास स्टेडी स्टेट पे सारी चीजें आ गई, तो आपने क्या करना है कि उसका एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको हिस्टोग्राम बनाना है सच दैट यू कंप्यूट के कौन सी नेटवर्क स्टेट कितनी दफा अकर की है बच्चों।
यहाँ पे 000 कितनी दफा आकर किया है, गौर से देखें। 1 2 2 टाइम्स। 2 times 2 0001 कितनी दफा आकर की है, 1 1। 1 ठीक है, मुझे बताओ 1010 कितनी दफा है, 2 3 2 3 3 times। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे यही फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, कुछ नहीं और, ठीक है। जब आपने फ्रीक्वेंसीज लिख ली हैं तो अब आपने अगले स्टेप में जाना है बेसन साइज रेशियो T+1, ठीक है, या T+n जो भी है यस वो कंप्यूट करेंगे। आपका 101010 कितनी दफा था, 3 दफा था। टोटल नेटवर्क स्टेट्स कितनी थी, 2n, which was 2 7 7, which is 3/2 3/2। ये दिखाओ बच्चों, शाबाश, फटाफट कंप्यूट करके एक वैल्यू, वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी ना, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 3/128 I think. So this is approximately 42 1/42.666 ठीक है। आप सबके लिए जो है ना बेसन साइज रेशियो निकालेंगे। बेसन साइज रेशियो भी क्लियर हो गया, Yes, sir. फजीला ओके, रिदा ओके। सर Yes, इसको sir. अगर डेसिमल में Yes. नहीं भी करते यहाँ तक छोड़ देते हैं तो ये ठीक नहीं है बेसिन साइज रेशियो। हाँ, बट जस्ट टू सी इट बिटवीन 0 and 1, ठीक है। अच्छा, देखो बच्चों, आपने बेसन साइज रेशियो हर नेटवर्क स्टेट का निकाल लिया। सो स्टेट्स कौन सी हैं यहाँ पे, क्या है सर? सॉरी, couldn't hear you। what are the attractor states here? Okay, 1 0 0 1 0 1 0, the ones which are repeating। Exactly, this is an attractor state, this is an attractor state। कुछ ऐसी नेटवर्क स्टेट्स होंगी जैसे जो 0/2 to 7 है ना, so this is equal to 0। so attractor states आपकी सिर्फ ये वाली हैं Steady state. एट स्टेडी स्टेट, बिल्कुल सही। तो आपने सर आपको वो 0 वाली कैसे पता चलेंगी? वो तो होंगी ही नहीं आपकी स्टेडी स्टेट में। हाँ नहीं होंगी ना, तो इसी बाकी सारी 0 होंगी, यही क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। But by virtue of their absence we know कि they have a basin size ratio of 0। okay, ठीक है, so इसको आप एक क्लासिफिकेशन की कर सकते हैं। कुछ होते हैं पॉइंट अट्रैक्टर और कुछ होते हैं साइक्लिक अट्रैक्टर, ठीक है। पॉइंट अट्रैक्टर्स, आई रिमेंबर, आई थिंक वी डिस्कस दिस, पॉइंट अट्रैक्टर सिंगलेट्स ऑफ नेटवर्क स्टेट्स, जिसके अंदर सिर्फ एक दफा सीधी नेटवर्क स्टेट आगे वॉल करती है। साइक्लिक होते हैं जिनमें स्विच हो रही होती है, ठीक है। और अनकैरेक्टराइज्ड अट्रैक्टर्स वो होते हैं जिनकी हमें बायोलॉजिकल मीनिंग नहीं पता होती, यू नो, डिस्कवरी। Okay, so what you can do now is the following. So there will be 2 cookie points, okay? So you can get 0.5 by just attempting the 2 examples I'm going to give you. ठीक है, so quiz compensate हो जाएगा। वैसे तो हसन और जैनब को एक cookie point इस क्लास में वैसे ही मिल गया, ठीक है। So pretty good। अब तुम लोगों ने करना ये है कि ये एक नेटवर्क आपके सामने मैंने रखा हुआ, ठीक है। आप लोगों ने इस नेटवर्क को डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस इस पे परफॉर्म करना, और मजे की बात यह है कि जो इसके रिजल्ट्स आएंगे ना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफर्म कर लें कि आपने सही फाइंड किया है कि नहीं। सो इट्स एन 11 नोड नेटवर्क विद 34 लिंक्स। इट्स ए Yeast cell cycle network। वोंग एट ऑल ने इसको रिपोर्ट किया था 20 years ago। और इसकी जो स्टेडी स्टेट पे बेसिन साइज रेशियोज हैं वो आपके पास यहाँ पे state number, ठीक है। So you're going to compute this basin size ratio by looking at 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। इस नेटवर्क स्टेट की मुझे आपने
बेसिन साइज रेशो कंप्यूट करके कंफर्म करनी है 0.861 by analyzing the network that I showed you in the previous slide. ठीक है, अभी करनी कैसे है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ये हाथ से कंप्यूट नहीं करना. आपने क्या करना है, आपने जाना है ऑनलाइन और सर्च करना है एटलांटिस टूलबॉक्स. उसको गिटहब से डाउनलोड करना है और उसको मैटलैब में रन कर देना है. और उसकी ये एक एग्जांपल है उसके साथ जो अवेलेबल है आपके पास. वहाँ पे इसका कोड, इसके नेटवर्क की फाइल और वीडियोस भी हैं जो आप से सिर्फ आपने वीडियो देखते जाना है और उस तरह करते जाना है. और you should get this table and you will confirm the value 0.861 by sending us a screenshot of your window and you're going to get a cookie point for this. ठीक है, easy peasy. यस सर, एटलांटिस टूल बॉक्स गिटहब से डाउनलोड करना है मैटलैब में. Atlantis, ATLANTIS, Attractor Landscape Analysis Toolbox. इसका एक्रोनिम Atlantis है. ठीक है, अच्छा. So that much for an example to do by software. And here is another example you will find with Atlantis on GitHub. और इसके ऊपर भी आपको YouTube की वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर एक और नेटवर्क लिया गया है, P53 network that regulates cell death under DNA damage. This was published by Min-Soo Choi et al. In 2010 in Science Signaling. So you can also analyze this network, and what you will see is if you draw the landscape, so you will see something fabulous like that. So can anybody explain what is Min-Soo Choi actually showing in this figure? ये नो सेल डैमेज में जो है ना सेल को एनालाइज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी. तो इसमें सेल इस नीचे वाले पॉइंट पे सेल प्रोलिफरेशन शो कर रहा है क्योंकि सेल डैमेज नहीं है. और अगर सेल डैमेज होगा तो इसकी जगह एपोप्टोसिस होती है. हाँ हसन, तो ये नीचे पॉइंट Possibly all the attractors and then all the attractors. attractors. And This then, you know, is- this bar can also show us that probably the blue ones are quite stable and the red ones are not stable, perhaps. और हसन पॉइंट का था क्या था? सर वो पॉइंट जो है ना वो ब्लू वन नीचे पॉइंटेड है जो कि स्टेबल में है. तो ये अट्रैक्टर यानी प्रोलिफरेशन का इसको कहते हैं बेटे पॉइंट अट्रैक्टर. पॉइंट अट्रैक्टर. यस. ठीक है, और साइक्लिक अट्रैक्टर भी हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे. तो यहाँ पे एक नॉर्मल सेल, नॉर्मल एपिथेलियल सेल MCF10A, उसने जो है MCF10 सेल लाइन यूज की विच इज अ नॉर्मल सेल, अ ब्रेस्ट एपिथेलियल सेल. सो उसका जो लैंडस्केप था उसके नेटवर्क एनालिसिस के बाद वो इस तरह का नजर आया. ठीक है, आई थिंक इट इज अ फैबुलस view from here, है ना? With all the news about K2 and everything, we have our own in silico landscapes as well, which are equally enchanting. So probably if you look at it carefully, you will be able to see that there are these red peaks as well in the middle जो ज़ैनब कह रही थी कि highly unlikely हैं. Obviously they have a very low probability, so nobody will be existing. No network state will be resting at those red positions at steady state. सर जो अगर कैंसर स्टेट होगी तो हमने पढ़ा था कि वो भी स्टेडी स्टेट होगी तो उसकी भी डाउनवर्ड पीक होगी, लेकिन वो उसमें जाने के लिए उसको पहले एक अनडिजायर्ड स्टेट के थ्रू जाना होगा. वो अनडिजायर्ड स्टेट जो होगी वो अनस्टेबल होगी. बिल्कुल सही हयात. सो वो जो अनडिजायर्ड स्टेट है ना वो ये रेड वाली होगी. सो कैंसर सेल को बहुत ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ गिरना पड़ेगा आके. ठीक है, अब होता क्या है जब म्यूटेशन होती है ना तो आपकी जो ये रेड पीक्स है ना ये एकदम गायब हो जाती हैं. ठीक है, तो जो नॉर्मल सेल है वो बड़ा इजीली कैंसर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. Landscape ही change हो जाता है in the case of cancer. लैंडस्केप चेंज हो जाता है, बिल्कुल. अभी हम देखेंगे खैर. सो हयात, इज दैट क्लियर अभी जो हमने बात की है? जी सर, थैंक यू. हाँ वेलकम. अच्छा देखो बेटे, अब वो हम नेटवर्क को मॉडिफाई करें, हम डीएनए डैमेज दे रहे हैं. कैंसर सेल का क्या प्रॉब्लम होता है? उसका डीएनए Damage हो के weight continues to हाँ replicate. शाबाश ज़ैनब. सो
एक्सीलेंट, कि डीएनए डैमेज होने की वजह से आपका जो सेल है वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव प्रोग्राम या एबनॉर्मल इमोर्टलाइजेशन में चला जाता है ना, लैंडस्केप चेंज कर देता है। तो आओ देखते हैं कि लैंडस्केप में क्या तब्दीली आई। ये देखो, जैसे ही नॉर्मल सेल को डीएनए डैमेज आया, आपका लैंडस्केप चेंज हो गया। और लैंडस्केप कैसा, एक साइकिल बन गई, साइक्लिक अट्रैक्टर। और साइक्लिक अट्रैक्टर का फेट क्या है, सेल साइकिल अरेस्ट, कि उसने सारे फंक्शन अरेस्ट कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, फ्रीज कर दिया, और अब वो डीएनए रिपेयर करने की तरफ जाएगा, अपने मैकेनिज्म सारे उधर को शिफ्ट कर देगा, है ना। अमेजिंग, इजंट इट? Yes, sir. How modification at the genome level can be visualized using attractor landscapes. Waddington का लैंडस्केप मैंने पिछले दफा आपको दिखाया था, शायद आपको याद हो। अगेन सो मिंसू ने अगला स्टेप क्या उठाया कि उसने थेरेपी डाल दी, उसने डीएनए डैमेज को कंट्रोल करने की थेरेपी डाल दी, और देखो लैंडस्केप यकदम फिर बदल गया। और इस दफा क्या निकला कि एक ही पॉइंट अट्रैक्टर है जो बड़ा है, और उसकी फेट क्या है, सेल डेथ। सेल डेथ। सेल डेथ। थेरेपी आई है, उसने आगे सारे सेल मार दिए जिनमें डीएनए डैमेज। तो आपकी थेरेपी जो है वो इफेक्टिव है, ठीक है। एक्साइटिंग। Sir, yes, sir. Sir, I have a question. Like, if we look at the bar that's given on the right, so the blue color is showing the high stability. So, abhi bhi if we compare it with the cancer cell, so there are so many cells which are still very unstable, and there is only this downward depression that's blue. बिल्कुल सही कह रही हो। जो कैंसर सेल होता है उसके हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर में एक जो चीज है वो है जेनेटिक हेट्रोजेनाइटी। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे कितने सारे अट्रैक्टर बन गए हैं। ये देखो, ये तो यहाँ पे जो है इट्स अ ह्यूज अट्रैक्टर, बट उसकी जो डेप्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, द सेल्स आर अनसर्टेन, ठीक है। सो जेनेटिक हेट्रोजेनाइटी जो है इट इज अ हॉलमार्क ऑफ कैंसर, कि सेल का जो डीएनए का कंट्रोल है, डीएनए रिपेयर, डीएनए रेप्लिकेशन, सारे के सारे एडहॉक, ठीक है। Yes, sir. ओके, Sir, तो फिर in that case, जो blue वाला region है should be more as compared to that was seen in the cancer landscape. हाँ देखो, सारे सेल कैंसरस नहीं बन जाते, और सारी थेरेपी जो है, सारी थेरेपीज जो है वो सारे कैंसर सेल्स को नहीं मार देती। सो ये जो थेरेपी विप वन मोड इनहिबिशन है, इसने प्रॉब्ली सेल्स को डैमेज किया बाय किलिंग देम। Okay, okay, okay. बाकी ऐसे हैं जो कि इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू थेरेपी। अभी हम Yes, sir. ये जो बाकी अट्रैक्टर्स हैं उनका क्या मतलब है, Sure, sir. Yeah. हाँ, कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ थेरेपी दे आर नॉट चेंजिंग। Thank you, sir. हाँ, वेलकम। अच्छा बच्चों, अब हम एक कदम और आगे उठाएंगे। अभी देखो हमने क्या किया, डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग। आप सब मेरे साथ हैं ना? डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग तक वी आर टुगेदर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग की आउटपुट क्या होती है, इट इज आइदर 0 और 1, Or 1. है ना। नोड ऑन होता ही ऑफ। अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसको चेंज कर दूं और आपको कहूं कि आपको मैं एक ऐसी मैथमेटिकल टूल बताता हूं जिससे ये 0 और 1 जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा टू 0.1 या 0.4 या 0.8, तो आपको पसंद आएगी ये बात? Yes, sir. I agree. Because it's more close to the reality. हाँ, इट्स मोर प्रिसाइज, है ना। 0 1 का क्या मतलब है भाई, वो स्विच तो नहीं है ना हर जीन 0 के ऑन और ऑफ ही हो, है ना। वो तो दरमियान में भी हो सकता है कोई एक्सप्रेशन। तो इट्स मोर रियलिस्टिक। ऑल ऑफ अस एग्री? फजीला? Yes, sir. अच्छा, अब सवाल ये है फजीला, रिदा और हयात, हाउ डू वी कन्वर्ट दिस अप्रोच, जो काफी पीछे हम छोड़ आए हैं, वापस ले चलता हूँ आपको वहाँ पे। इस अप्रोच को, इस डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग अप्रोच को हम कैसे चेंज करें सच दैट वी गेट अ प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ इट? सर हमने ये जब कैलकुलेट करे थे तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी, तो हम पहले उनका मैग्नीट्यूड नहीं कंसिडर करते, हम बस ये कहते थे कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको
बाइनरी में बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए, तो हम ग्रेटर देन लेस देन लगाए थे। बट आई थिंक अगर हम उसको मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना शुरू कर दें तो वी कैन नॉर्मलाइज इट बिटवीन 0 and 1 एंड मेक इट एज टू बी अ प्रोबेबिलिटी कि वो एक्टिवेट होगा या प्रोबेबिलिटी कि वो इनहिबिट होगा। बिल्कुल हयात, सो आई एम इम्प्रेस्ड। तो देखो तुमने बेसिकली एक जो कॉफमैन ने मॉडल बनाया था ना, तुमने वो ऑलरेडी बना के हमें सजेस्ट कर दिया। सो वी आर डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ पब्लिशिंग नेचर क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन एवरी क्लास। ओके, so this is exactly what probabilistic modeling is. For that, what we do is चलो पहले शुरू से कर लेते हैं, ये ना हो कि हम फिर गुम होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि आपकी एक नेटवर्क स्टेट जो है, जो फॉर एग्जांपल है 0 0 0, उससे आप है कि 0 0 1 पे कैसे जाएंगे, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे ही है ना। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन नेटवर्क स्टेट टू अनदर, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चों, तुम सारे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के गुरु हो। अगर मैंने नेटवर्क स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो 0 0 0 की, तो कैसे निकालूं? जिन बच्चों ने स्टैट्स लिया है मेरे साथ, उनको तो ये जवाब डेफिनेटली देना चाहिए। Out of all the states, frequency of this state divided by all possible states. Frequency of this state divided by all possible states. So let's say all possible states are 8. So इसकी probability 1/8 है, ठीक है? Everybody agree? Yes, sir. Everybody agrees? Yes, sir. अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि अगर 1/8 है और मैं आपको कहूँ कि ये ओवर टाइम ऐसे नहीं रहेगी, हर नेटवर्क स्टेट की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं रहेगी रिदा, ऐसे ही है ना, लैंडस्केप बनाना है तो कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी, तो Yes, एट क्या होगी? सो दिस इज t = 0। अब मैं पूछ रहा हूँ t = स्टेडी स्टेट, इस पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 0 0 की? अब कैसे निकालेंगे? Again, we can do the same thing. How many times is it occurring divided by the total number? एट स्टेडी स्टेट, of steady state. है ना? देन जैसे बेसिन साइज रेशियो निकाला है, Exactly, sir. ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। मुझे बताओ, आपके पास एक सैक ऑफ बॉल्स है, ठीक है, उसमें रेड्स हैं और ब्लूज हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू कितनी होगी? जल्दी से 4/7. 4/7। Number of blue balls. Yes. अच्छा, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू कितनी होगी? Are you replacing it? यस, गुड क्वेश्चन। 4/7 into 4/7. 4/7 into 4/7, है ना? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू कितनी हो जाएगी? 4/7 into 4/7 into 4/7. 3 times. ठीक है, ऐसे हो गई। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे नोड्स की प्रोबेबिलिटीज निकाल लूं, तो नेटवर्क नोड्स की स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, तो नेटवर्क की स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ? बताइए। Yes. Yes, sir. Probability of this multiplied by probability of that multiplied by probability of that will give you the probability of this, है ना? बड़ी सिंपल सी बात है, Yes, sir. ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नोड की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नोड, और इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क स्टेट, नोड स्टेट एंड नेटवर्क स्टेट। फजीला साथ हो ना हमारे? जी सर। अच्छा बच्चों, अब देखो, अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क स्टेट निकाल लूं, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन नेटवर्क स्टेट टू गो इनटू अनदर नेटवर्क स्टेट क्या होगी?
Yeah, the probability to move from 1 to 1, 0 to 0, and 1 to 0. Yes. So without And then doing interaction data, it should be. बताएं जी. 1 to 1 जाने की probability is half because we have two possible outcomes. Either it's Great. 1 or 0. Great है ना आगे 0 And से then 0 जाने की 0 will be the same thing. It's going to be again half. again half And then from 1 to 0. and then the again, third one half. yeah, still half. तो अगर इन then- तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है. Yes, sir. So क्या दुरुस्त होगा अगर मैं कहूं probability of 101 to go into 100 is 0.125. Magic? सर इस तरह तो जो भी अब किसी भी स्टेट में जाने के फिर सेम हो गए. हाँ हयात बिल्कुल सही, इसीलिए लिखा गया है नीचे without using topology of the network or interaction of the network, है ना. सो हमने इस प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने को मॉडिफाई करना है, इस तरीके को हमें ठीक करना है. हाँ अच्छा, अगर हमने हयात इसको मॉडिफाई कर लिया, अभी हमने एम्पिरिकली इसको निकाला है, हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को कंसिडर नहीं किया. अगर हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को कंसिडर कर लिया तो फिर ये काम ठीक हो जाएगा. सर ज्यादा एक्यूरेट हो जाए, इससे तो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा. वेरी गुड. तो दिस इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, दिस वैल्यू इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट एट t इज इक्वल टू 0. ठीक है, और t इज इक्वल टू एंड के ऊपर हम जाके इस प्रोबेबिलिटी को जाके दोबारा देखते हैं कि अपडेट होके क्या आया. सवाल ये कि कैसे कंप्यूट करें, हैं? होल्ड ऑन, ऐसे कंप्यूट करेंगे. सो डोंट रन अवे. ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाटएवर इज रिटन हियर. इट्स अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स which should be making perfect sense if I explain it nicely. So you have to be with me. अगर सो गए या पीछे रह गए तो फिर समझ नहीं आएगी. देखो बच्चों, अगर तुम जरा कीनली देखो तो you will agree with me कि इस साइड पे जो चीजें लिखी हुई हैं ये कुछ जानी पहचानी सी हैं. Yes, sir. है ना. ये हमने ठीक. कहाँ पे ये सर Deterministic analysis. एनालिसिस में डिटरमिनिस्टिक एनालिसिस. यहाँ पे मतलब ये होता था इसका कि अगर आपका इनवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, आपको जीन्स एक्टिवेट कर रहे हैं बहुत सारे, है ना, तो आपने कुछ खास करना है, आपने ऑन होना. हम पिछले दफा यहाँ पे 1 लिखा है, आपको याद होगा, है ना. और यहाँ पे देख रहे थे कि आपका फ्लक्स जो था वो नेगेटिव आ रहा था, इसकी वजह से आप सो रहे थे, आपको इनहिबिट किया जा रहा था, तो इवेंचुअली आपका स्टेट 0 आएगी. और यहाँ पे ना फ्लक्स अंदर आ रहा था ना बाहर जा रहा था, मेरा मतलब एक इक्विलिब्रियम था. तो आपकी जो नेटवर्क स्टेट थी वो वही थी जो पिछली दफा थी, सेम. अभी तक तो परेशानी नहीं है. रिदा, फजीला, हयात, Yes, हेलो. sir. Yes. अच्छा चलो, अब हमने क्या किया कि उसको 1 देने के लिए और बजाय उसको 0 देने के और बजाय उसको एक्स आई देने के, हमने पता है क्या, हमने उसको ये वाला फंक्शन दे दिया. ये फंक्शन कर रहा है बेसिकली आपका, ये पूरी वही चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है ना. हयात ने इंडिकेट किया कि आप यहाँ पे, आपको वो एक नंबर दे रहा था जो आपने इग्नोर करके 1 बता दिया था, है ना. ये एक नंबर दे रहा था आपको, ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला. सो इस दफा हमने वो नंबर यहीं रखा और उसको म्यू मल्टीप्लाई कर दिया. म्यू इज लाइक 0.95, राइट. सो इट्स क्लोज टू 1. ठीक है, एक लार्ज नंबर, यानी कि समझ लो कि जो वैल्यू थी वही रहेगी तकरीबन, मोर और लेस. थोड़ा सा उसमें आपने नॉइज ऐड कर दिया. ओके, ठीक है. अच्छा, कि ये वैल्यू है, आपने उसका ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन की थ्रू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan हाइपरबोलिक, और आपके पास जो उसका आउटपुट डोमेन आ गई है वो ये है. ठीक है, बजाय इसके कि आप ये होते स्टेप फंक्शन होते 0 और 1, अब आप क्या बन गए,
a probabilistic function between 0 and 1, and you can have value 0.01 or 0.5, whatever. देखो कितना कन्वीनियंट काम हो गया, आपने अपनी जो वैल्यूज थी उनको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक, और आपने उसके साथ उसको म्यू से भी मल्टीप्लाई कर दिया इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ बिट ऑफ नॉइज, एग्जैक्ट ना रहे वैल्यू, है ना। अगर आप 9.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी चीज को 5% नॉइज या लेट्स से 2% नॉइज व्हाटएवर, तो आपके पास थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी, है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों हुआ क्या कि आपने 1/2 + 1/2 tan hyperbolic of something good which you already know, ठीक है, आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम +1 to +0.5, यानी कि सम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया आपने उसको। आपने इसके ऊपर देखा कि नोड 0 से 1 यानी कि नोड ऑफ से ऑन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आ गई, नोड ऑफ से ऑन होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह आप नोड ऑन से ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी भी तो निकाल सकते हैं ना, है ना। ये देखो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर का मतलब है कि आपने tan हाइपरबोलिक कौन सा यूज करना है, ऑन से ऑफ वाला, है ना। आप ऑन थे ना, तो आपने अब ऑफ होना है, ठीक है। तो आपने नोड 1 से 0 वाली प्रोबेबिलिटी भी कंप्यूट कर ली बाय यूजिंग द सेम फंक्शन, है ना, tan हाइपरबोलिक। सिमिलरली नोड अनचेंज्ड, नोड 1 से 1 और नोड 0 से 0 रहने वाला भी, उसका मतलब आपकी जो probability of that node to go from one state to the same state is 1, लेकिन आपने क्या किया कि उसमें से c जो कि बहुत स्मॉल नंबर है, लेट्स कॉल इट 0.01 और इवन स्मॉलर 1%, आपने उसमें एरर डाल दिया, बजाय 1 प्रोबेबिलिटी देने के आपने उसको 0.99 प्रोबेबिलिटी दे दी फॉर द नोड टू रिमेन अनचेंज्ड। कितनी बात समझ आएगी अभी तक? सर ये सी वाली बात इस बार एक्सप्लेन कर दें। हाँ मैं सी वाली बात बता देता हूँ, देखो मैं ये सारा पहले इरेज कर लूँ, ओके। सो देखो एक नोड की प्रोबेबिलिटी टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू द सेम स्टेट अगेन गिवन कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, कितनी होनी चाहिए बेटे? सर गिवन कोई चेंज नहीं आती तो फिर तो 1। एग्जैक्टली वही वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कोई चेंज नहीं है ना। तो हम बेसिकली एक स्मॉल फैक्टर उसमें से माइनस करें बिकॉज ऑफ टू सॉर्ट ऑफ compensate for natural factors। हाँ, टू कॉम्पेंसेट फॉर नॉइज हम उसके अंदर थोड़ी सी स्टोकेस्टिसिटी डाल रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। यू हैव एडेड स्टोकेस्टिसिटी और नॉइज इनटू द मॉडल थ्रू म्यू एंड सी। और देखो ये इसका बायोलॉजी में मतलब क्या है, सी का मतलब ये होता है स्मॉल नंबर का। देखो बेटे हर मॉलिक्यूल जो है ना वो 100% रिप्रोड्यूस नहीं होता, उसमें कुछ फोल्डिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं प्रोटीन्स में, कुछ डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ लाइसोसोम्स के अंदर चढ़ जाते हैं। सो यानी कि अगर टाइम टी के ऊपर 100 मॉलिक्यूल हैं तो टाइम t+1 के ऊपर 99 रह जाएंगे, ठीक है। इन biological system some molecules they get degraded, all right, so this is therefore called the degradation constant। c को हम कहते हैं degradation constant और म्यू को हम कहते हैं नॉइज, ठीक हो गया? सर जिस तरह आपने सी की बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी उस तरह म्यू की बायोलॉजिकली क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ बेटे, सो म्यू जो है इट इज लाइक दिस कि जब आप एक नोड की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, सो देयर आर सम फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू interrupt the formation or synthesis of that molecule, so the synthesis will never be 100%। ठीक है, नीचे वाला है डिग्रेडेशन, ऊपर वाला है प्रोडक्शन, ठीक है। वो भी अगर 100 मॉलिक्यूल बना रहे हैं आप एक बायोलॉजिकल सिस्टम में, यू माइट एंड अप सक्सेसफुली मेकिंग जस्ट 95। यार जी सर। ठीक है, ओके।
So अगर perfect system होता तो mu की क्या value होती? 1. Yes, very good. चलो सॉरी. सो अब हमें probabilistic जो मॉडलिंग है उसमें नोड की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना आ गई कि नोड 0 हो तो उसको 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट करनी है, नोड 1 हो तो उसको 0 पे जाने की कैसे कंप्यूट करनी है, और नोड अगर अनचेंज रहना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट करनी है. मेरे बच्चों मुझे सिर्फ ये अगर तुम बता दो ना बगैर स्लाइड देखे आगे कि अब हम इस नोड की प्रोबेबिलिटी से यानी कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नोड से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क स्टेट कैसे निकालेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी. सर अगर आपके पास 100 है और आपने 101 पे जाना है तो आप लाइक 1 की probability to convert into 1 and then 0 की probability to convert into 0 and then 1 की probability to convert into 0. बेसिकली हर नोड की आप जो स्टेट आपकी प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट के बीच का जो कंपैरिजन है कि वो 1 से 0 में जा रहे हैं, 0 से 1 में जा रहे हैं, 1 से 1 में जा रहे हैं, अब हर नोड के लैदा लेके फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्सीलेंट. और देखो ये साइंस का एक और पेपर है, ये देखो, दिस इज व्हाट दे डिड. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. दे टुक द प्रोडक्ट. अच्छा इसी पाई लिखी है ना, इसका मतलब प्रोडक्ट दिस गाय. ये है 16 नोड का नेटवर्क था, साइंस सिग्नलिंग का पेपर है. सो ही जस्ट मल्टीप्लाइड ऑल द नोड स्टेट्स टुगेदर. ठीक है, और आपके पास ओवरऑल नेटवर्क की स्टेट t+1 निकल आई है. वेरी सिंपल. ज़ैना क्या कहती हो? Yes, sir. But why is it like not dependent upon the previous time step? बेटे पिछले टाइम स्टेप के ऊपर से ही तो निकाली है. ये देखो यहाँ जो t था वो प्रीवियस वाला था ना. Because There was this point, it was mentioned on the next slide. t prime is t+1. ज़ैना hello. Yes, sir, that's clear. But it's saying there that there's no dependence on earlier time steps. I just read that. नहीं बेटे देखो यहाँ पे है node state t prime. T prime is t+1 depends on on T T से previous. because it is मतलब Markov. exactly previous state, not the states before that. हाँ, Not ये- every step. Take got it. it? Yes, sir. ग्रेट. लो जी, जो हयात ने सॉल्यूशन दिया है आप वो स्टेप 3 में पढ़ सकते हैं. सुकून से पढ़ें. 5-10 seconds are yours. The transition probability of a specific network state from t to t+1 can be calculated by simply multiplying the transition probability of each node within the network. Simple. बात खत्म. ठीक हो गया. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूं. एवरीबॉडी विद मी. पीछे तो कोई नहीं रह गया ना. हेलो ब्लू हैंड्स. Yes. कम ऑन. फजीला है ना हमारे साथ? Yes, sir. फजीला आज खामोश है बिल्कुल. भाई क्या हुआ है? जेट लैग? We are in the same time zone. अच्छा, तो बच्चों देखो यहाँ पे वही चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. देखो यहाँ पे हम कंप्यूट कर रहे हैं एक नेटवर्क स्टेट है 0-0 और हम उसको देख रहे हैं 0-0 में जाने की. तो कैसे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट होगी? मुझे फजीला और ज़ैना से आंसर चाहिए. Okay. 0, 0 to 0, 0. That means we are not changing anything. So if we are not changing anything, so we have that step 3 in which the node value is supposed to remain constant. And for the case of the probabilistic modeling, we have taken it to be equal to 1. And we just to consider the stochasticity, we'll subtract C from it. So बेटे whatever the value. से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सी इज
डिग्रेडेशन कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, डिग्रेडेशन इनकॉर्पोरेट करना, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कर दी फिर? Multiply both the probabilities. 1 minus c into 1 minus c. एक्सीलेंट। देखो इसी में नीचे यही लिखा हुआ है, 0 0 में चला गया है, 0 0 में चला गया। अच्छा देखो अगर मैंने ऐसा करना होता, ये देखो अगर मैं इसको 0 से 1 में करना चाहूँ तो अब मुझे हसन बताएगा। सर अगर आप इसको 0 से 1 में करना चाहेंगे तो हम वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि म्यू उसके अंदर ऐड कर देंगे। हाँ बेटे, जिसमें म्यू तो मल्टीप्लाई होगा, जिसमें प्लस 1/2 tan हाइपरबोलिक यस मल्टीप्लाइड बाय म्यू, यस पूरा हुआ है ना? यस। ठीक है। अच्छा अगर आप मुझे बताएगी हयात कि अगर हम सॉरी अगर हम 1 से 1 में जाएं अब क्या होगा? सर 1 से 1 में ही जाना है, हाँ जी, तो 1 माइनस सी दोबारा आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बच्चों अब एक बस वेरिएशन रह गई है, मुझे बताओ 1 से 0. ये वाला अब क्या होगा? 1 half plus half negative minus half tan hyperbolic वाला function. वेरी गुड, 1/2 minus 1/2 tan हाइपरबोलिक। ठीक है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, है ना? देखो बड़ा इजी सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ आपने ना एक दफा समझ लेना कि गेम है क्या, नेटवर्क को ओवर टाइम चलाना कैसे। तो यू नो doors of system biology are open after that, there is nobody to stop you। तो ठीक है। अच्छा अब आपने ना ये जो नीचे टेबल मैंने बनाया हुआ ना, इसकी भी अहमियत है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना ये है कि हर नेटवर्क स्टेट, कितनी नेटवर्क स्टेट्स हो सकती हैं पॉसिबल फजीला? जी सर। हाँ, कितनी नेटवर्क स्टेट्स हो सकती हैं टोटल? 4। हाँ 4, 2⁻², 2 नोड नेटवर्क है ना? ठीक है, दिस इज 4। आपने दोनों तरफ ये चारों लिख लेनी है, समझ आ गई बात? और आपने अब फिल करना है कि 0 0 से 0 0 जाने की प्रोबेबिलिटी, 0 0 से 0 1 पे जाने की, 0 0 से 1 0 पे जाने की, 0 0 से 1 1 पे जाने की। ठीक है, ये सारी कंप्यूट कर लोगे बच्चों? Yes sir. जी सर। कोई मसला ही नहीं है, लाइफ इज ग्रेट। आपने जब ये सारे फिल कर लिए तो इसका मतलब आपके पास नेटवर्क स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गया। बच्चों देखो यहाँ पे क्या थी, नेटवर्क स्टेट्स थी, नोड स्टेट्स नहीं थी, है ना? यहाँ पे क्या था आपके पास? नेटवर्क स्टेट। Network states. तो इस मैट्रिक्स को अब हम क्या नाम दें? Network state transition matrix. एक्सीलेंट रहना, शाबाश, दैट मेक्स माय लाइफ वेरी इजी। सर इसकी जो डायगोनल होगी वो 1 माइनस सी होगी ना, 1 माइनस सी टाइम्स 1 माइनस सी। एग्जैक्टली हयात, जितने नोड होंगे उतने टाइम्स आपने, उतनी टाइम्स। हाँ हाँ 1 - c⁻n। और बाय द वे ये सिमेट्रिक होगा कि एसिमेट्रिक होगा बच्चों? फजीला सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा सर। एसिमेट्रिक होगा। तय कर लो आपस में दोनों, तुम लोगों का ओपिनियन डिफरेंट है। सर द 0 0 से 1 0 में जाने की स्टेट विल नॉट बी द सेम एज 1 0 से 0 0 में जाने की, क्योंकि 0 से 1 जाने के लिए हमारा पॉजिटिव साइन है, 1 से 0 जाने के लिए हमारा नेगेटिव साइन है। गुड गुड, शाबाश। सो हसन, इट विल नॉट बी सिमेट्रिक, थोड़ा बारीकी से देखना बेटे। यस हैं? हाँ, मेरे ख्याल है तुम्हें पता चल गया है ना, वो 0 से 1 और 1 से 0 इट्स नॉट द सेम। ठीक है, यस। चलो अब हमारी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग जो है ना वो आधी तकरीबन मुकम्मल होगी। अब आपने सिर्फ एक छोटी सी उसके ऊपर एक ट्रिक पुल करनी है और आपका सब कुछ जो है ना वो ठीक हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है वो आपको यहाँ से पता चलेगी। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चों? चलो पहले पढ़ना सीखते हैं इसको। व्हाट इज dpi/dt? व्हाट इज दिस? Rate of change of PI.
तो डिफरेंस इक्वेशन भी कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी नहीं है ना कहीं तो आप लगी होंगी। अच्छा, तो हम पढ़ते ऐसे हैं, डिफरेंस ऑफ पी ओवर डिफरेंस इन टाइम, या चेंज इन पी एज टाइम चेंजेस। ठीक है, बड़ा इजी होगी बात। ये कैसे पता चलेगा? आप जरा dpi by dt को गौर से देखो और मुझे बताओ कि इसका ये फिर मतलब कैसे है। यहाँ पे देख के Like how are the चलो इस पे भी कुकी पॉइंट मिलेगा। कम ऑन, एनकरेजिंग फजीला एंड हयात, आज तुम दोनों पीछे रह गए भाई। कम ऑन, टेक अ कुकी पॉइंट, शाबाश। ये एक्सप्लेन सर करो। मैं कहते पीछे रह गई उस वक्त तो बोल रही हूँ। चलो ये एक्सप्लेन दिस, गेट अ क्वार्टर। ठीक है, नो शुगर। हाउ डज दिस इक्वेशन गिव यू dpi by dt? अगर तुम लोगों ने ये बता दिया ना, ओके यू कैन डिस्कस एज वेल। अगर इफ यू आंसर दिस इट विल बी फैबुलस, क्योंकि दिस विल कंक्लूड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। flux in and out? So we are summing all the products of transitioning from one network state to another, that is I from I to J. Then like we are taking the sum of all of these states. सर एक तरफ हम ले रहे हैं कि आपकी ट्रांजिशन आपकी प्रोबेबिलिटी की ट्रांजिशन होगी फ्रॉम नेटवर्क स्टेट आई टू जे, जो कि उसकी आउटगोइंग एजेस के ऊपर है, एंड दूसरी तरफ इनकमिंग एजेस का है। क्या हो रहा है आउटगोइंग और इनकमिंग? कोई कभी फाइनेंस पढ़ा है? उसमें एक होता है, क्या उसको कहते हैं, अकाउंटिंग, कि हाउ मच मनी वाज मूव्ड आउट एंड हाउ मच मनी वाज मूव्ड इन। फिर एक चीज आ जाती है नेट अमाउंट। Yes sir, दोनों इसमें का net डिफरेंस amount 0 आनी सर चाहिए ये क्योंकि difference है। हाँ हाँ सर कंटिन्यू। हाँ हाँ, और गो शाबाश। I think it's a net end पे we should have 0 so that there is no change in the probability. इसमें नेट इन Then को you need माइनस a कर देना, steady नेट state. वो एक्सीलेंट है ना, बिल्कुल सही बात की, लेकिन जो सवाल है वो ये नहीं है। सर जो आपकी एक नेटवर्क स्टेट है लेट्स से 000, तो इट कुड बी कि लाइक मल्टीपल स्टेट से उसके अंदर आप आ रहे हो एंड उस स्टेट के अंदर से आप एक नेक्स्ट स्टेट के अंदर जा रहे हो, हाँ, तो लाइक आपकी मल्टीपल स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, तो आप एक तरफ प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट इनटू दैट स्टेट और एक तरफ प्रोबेबिलिटी दैट यू गो फ्रॉम दैट स्टेट टू द नेक्स्ट। सॉरी, मल्टीपल नेटवर्क स्टेट से 0 में आ रहे हैं और 0 से भी आप मल्टीपल नेटवर्क स्टेट्स में जा सकते हैं। तो आप एक तरफ वो वाली प्रोबेबिलिटीज को सर हम सम कर रहे हैं इनकमिंग प्रोबेबिलिटीज एंड आउटगोइंग प्रोबेबिलिटीज और उनका डिफरेंस ले रहे हैं। वेरी गुड हसन। The cookie point needs to be split into 4. Already it's a small cookie point, but anyway. So तुम सारों ने मिलके ना वो the 4 blind men who went to see the elephant, and I think you have reached the conclusion by if I collate whatever you have said, all 4 of you, तुम लोगों ने किया क्या है कि ज़ैना ने स्टेडी स्टेट बता दिया, हसन ने नेट फ्लक्स बता दिया, हयात ने जो इनवर्ड फ्लक्स है वो बताया, और फजीला हैज एक्चुअली ब्रोकन डाउन द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज विद द नोड प्रोबेबिलिटी, सो द नेटवर्क स्टेट। सो द थिंग इज कि ये इक्वेशन आपको वो बताती है फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स है, एक नेटवर्क स्टेट से बाहर जाने वाले लोग कितने हैं, उस नेटवर्क स्टेट में आने वाले लोग कितने हैं, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस नेटवर्क स्टेट में नेट चेंज कितना आएगा। ठीक है, और इनिशियली हम कहते हैं हर नेटवर्क स्टेट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। 0 की कितनी प्रोबेबिलिटी है बच्चों? 1/2 into 1/2. हाँ, 1/2 यानी 1/4। 0 1 की प्रोबेबिलिटी
भी 1/4 है, 10 की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है और 11 की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। तो इनिशियली सारे एक ही प्रोबेबिलिटी, लेकिन फिर उसमें से कुछ ले दे शुरू हो जाती, लेना देना शुरू हो जाता है ना। तो कुछ नेटवर्क स्टेट्स 1/4 से कम होके 1/400 हो जाएंगी और कुछ नेटवर्क स्टेट्स 1/4 से बढ़ के 3/4 हो जाएंगी, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क स्टेट्स जा रहे होंगे। डज इट मेक सेंस? Yes. Yes, sir. It does? Okay, great. So basically ये जो डिफरेंस इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पी आई ओवर टाइम है या डिफरेंस इन पी आई ओवर टाइम है, वो यही है। तो आखिरकार पे इन सारे डिफरेंसेस को ऐड कर लें इनटू 1/4, तो वो आपको जब ये सारा नंबर ऐड होगा तो आपको स्टेडी स्टेट के ऊपर ज़ैनब जो कह रही है कि वो आपको फाइनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी उस नेटवर्क स्टेट की, और जो आपके अट्रैक्टिव लैंडस्केप के अंदर नजर आ रही होगी। ठीक हो गया? दैट मींस कि जो हमने मैट्रिक्स बनाया था इन आई थिंक इन स्लाइड नंबर 25, so how are those values going to help us in the calculation of this thing? देखो, ज़ैनब वेरी गुड। ये देखो अगली स्लाइड पे यही आपको मिसाल दी है। सो आपने क्या करना है, एक नेटवर्क स्टेट से जो बाहर जा रही हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज पकड़ लेनी है, और बाकी सारी नेटवर्क स्टेट्स जो उसके अंदर आ रही हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज पकड़ लेनी है। ठीक है, और आपने क्या करना है कि उस नेटवर्क स्टेट के साथ उनके प्रोडक्ट ले लेने, सिंपल है ना, जी 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 to add them all up. And this is what the difference equation was in the previous slide, ये वाली। ठीक है, अच्छा Yes, sir. हम यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो वक्त खत्म हो गया, दूसरा आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू। सो अगली क्लास में हम फिर यहीं से शुरू करेंगे बच्चों। अच्छा, और कुकी पॉइंट पता है क्या है आपके लिए? सो दिस विल बी द थर्ड कुकी पॉइंट ऑफ द क्लास। आपने सबको मिलेगा अगर आपने ये काम किया। आखिर में इन स्लाइड्स के एक एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस स्लाइड के अंदर से गुजर के आपने देखना है कि प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस चलता कैसे है, एज एन एग्जांपल। ठीक, अगली क्लास में मैं ये एग्जांपल आपके साथ बाय हैंड सॉल्व करूंगा, सो यू विल बी एबल टू सी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, प्लस आपने एटलांटिस वाला जो कुकी पॉइंट है वो भी सारी क्लास के लिए। सो इफ यू गेट टू हैव यू नो if you get to run Atlantis, then you'll get a cookie point for that as well. So you have two cookie points for you for today. Or if there are any questions, then I will take them. Otherwise, मैं थोड़ा सा टाइम से बाहर निकल गया हूँ, उसकी मदद चाहता हूँ। हाँ जी, सर एग्जांपल को हमने मतलब इसको करना क्या करके सेंड करना है? जो आप एग्जांपल है एग्जाम्पल को सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है, और आपने पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करना, नाइस एंड नीट हैंड राइटिंग प्लीज। ओके, ठीक है, चलो, if there are no more questions, then we'll stop here and we'll see you in the next class with a solution to probabilistic analysis and its applications after that. ठीक है, उसके बाद फिर हम मल्टी-स्केल मॉडलिंग पे चलेंगे। इन पर्सन क्लास, इन पर्सन क्लास होगी ना नेक्स्ट, आप कह रहे थे? Oh yes, there's a very good news. So Fazila is back on the campus. So I forgot to tell you. So inshallah ta'ala we will be meeting together, और example whiteboard पे करेंगे, ठीक है? I hope we'll finally get to see each other. और alright, ठीक है बच्चों? Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you. Take care.